Hello students. So today we are going to solve the question of the chapter biomolecules. So let us begin. The first question is maltose on treatment with dilute HCl gives, and you have four options: D-glucose and D-fructose, D-fructose, D-galactose and D-glucose. Now talking about maltose, we know that maltose is a disaccharide. माल्टोस क्या है? एक डाइसैकेराइड है. It means that it is made up of two monosaccharide units joining together. So whenever we will do hydrolysis of maltose, जब भी हम maltose का hydrolysis करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं? We get two molecules of alpha D glucose. We get two molecules or two units of the alpha D glucose, and we know that these two alpha D glucose have C1C4 linkage. That is, carbon number 1 of one glucose unit is linked to the carbon number 4 of another glucose unit, right? So this is about maltose. So what will be our answer? Our answer will be option D, that it will give us 2 units of D-glucose. Moving on to the next question. Fructose and glucose can be distinguished by. Fructose and glucose को हम कैसे distinguish कर सकते हैं? And we can see the name of 4 tests that are given to us. That is Felling's test, Barford's test, Benedict's test and Sullivanov test. So इन टेस्ट में हम एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो फेलिंग सॉल्यूशन or Felling's test is carried out by using Felling's solution. So we know that this Felling's solution is actually made up of two components, that is Felling's solution A and Felling's solution B, right? Felling's solution A is nothing but a aqueous copper sulfate solution, and Felling's solution B is also known as Rochelle salt. It is the sodium potassium tartrate, right? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. तो ये होता है फेलिंग्स टेस्ट. नाउ फेलिंग्स टेस्ट will be given by a free aldehyde group, right? So obviously glucose तो ये टेस्ट देता है, but talking about fructose also gives a positive Felling's test, right? So that's why option A can't be our answer. Then next is Barford's test. Barford's test. Now remember, Barford's test or Barford's reagent is used to detect the presence of monosaccharides. मतलब मोनोसैकेराइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बारफोर्ड्स टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो देखा जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड्स है, तो दोनों के बीच में हम इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, राइट? देन नेक्स्ट इज द बेनेडिक्ट्स टेस्ट. नेक्स्ट है हमारी बेनेडिक्ट्स टेस्ट. एक्चुअली द result that we get in Benedict's test is much similar, or it is as same as the one which we get in Felling's test. But the difference is that this Benedict solution is made up of copper sulfate, sodium citrate, that is sodium salt of citric acid, and sodium carbonate, that is Na2CO3. Again, it is used to detect the presence of the free CHO group in the molecule. But fructose also gives this test, remember, because by showing tautomerism, that is keto-enol tautomerism, fructose जो है keto form से enol form में आ जाता है, and enol form also gives positive Felling's test or Benedict's test. Remember this thing. So that's why all these three tests will be given by both of this compound. So obviously बचता है last option, that is Sullivan's test. So ये जो Sullivan's test है, this test is actually used to distinguish between a ketose and a aldose sugar. अगर तुम्हारे पास दो sugar है, one is a ketose and one is aldose, then we can use this
Selivanov's test. Okay, so obviously our answer will be option D. Okay, so actually this is a resorcinol solution which is made in HCl, that is in the concentrated HCl, right? And जो हमारे कीटो शुगर होते हैं, कीटो शुगर they give a red PPT with this reagent. Ketose sugar gives a red PPT while aldose sugar will not form any PPT. So that's why the answer for this question will be option D. Moving to the next question. What, sorry, which of the following statement is not true about sucrose? Which of the following statement is not true about sucrose? But moving on further, just make a simple correction in this question. It is misprinted over here. It should be C1. Okay. Chaliye. Let us have a look at the options. इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है. क्या क्या कहा है? पहले कहा है इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इनवर्ट शुगर. यस, दिस इज करेक्ट. सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर. Sucrose is also called as invert sugar. So this statement is actually true. Then next, the glycosidic linkage is present between C1 of alpha glucose and C1 of beta fructose. Now, if you see the structure of sucrose, तो sucrose जो है वो हम जानते हैं कि sucrose is actually made up of alpha D glucose and beta D fructose Now, what is the linkage? Obviously, we know glycosidic linkage is formed, but the glycosidic linkage is between the C1, that is the carbon 1 of alpha glucose, and the carbon 2 of beta fructose. C1 C2 linkage होती है sucrose में. So that's why option B is actually wrong. Then इवन दो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, बट फिर भी हम एक बार सी डी ऑप्शन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं. सी ऑप्शन में कहते हैं इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. बिल्कुल, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई दोज आर नॉट अवेलेबल एंड दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. On hydrolysis it produces glucose and fructose, correct. So obviously इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी. Okay, moving on to the next question. The peptide that gives positive steric ammonium nitrate test. The peptide that gives positive steric ammonium nitrate and carbylamine test. Now carbylamine test जो है वो हम amines chapter में देखते हैं. What is carbylamine test? Primary aliphatic amines give positive carbylamine test. That is, when these primary amines are treated with chloroform and ethanolic solution or alcoholic solution of KCl, isocyanides are formed. Right? This is carbylamine test or isocyanide test. Then, what is steric ammonium nitrate? See, steric ammonium nitrate is a reagent. Any amino acid, okay, any amino acid that has OH group, that is the alcohol group, gives positive test for सेरिक अमोनियम नाइट्रेट. शॉर्ट फॉर्म में इसको CAN ऐसे भी लिखते हैं. राइट. सो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो जिन अमीनो एसिड्स पे OH ग्रुप होगा ना वो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की टेस्ट देंगे. अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑप्शंस में देखें तो हमें कुछ अमीनो एसिड्स बार बार रिपीट हुए होते दिख रहे हैं कि जैसे LYS स्टैंड्स फॉर लाइसिन. सो व्हाट इज लाइसिन? NH2 4 times CH2, CH, COOH and NH2. This is lysine, right? Then serine
OH, CH2, CH, NH, COOH. दिस इज सेरीन, राइट. तो देखिए सेरीन में हम देख सकते हैं कि जो सेरीन है उसमें क्या है, OH ग्रुप है, राइट. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो एक तो है जिसमें हमें GLN दिख रहा है. ओके, सो GLN stands for glutamine, right? Okay, so I will also draw the structure of glutamine over here. COOH, CH, NH2, then CH2, CH2, C double bond O, NH2. This is glutamine, GLN. And one more amino acid जो हम options में देख सकते हैं, that is ASP, that is aspartic acid. So aspartic acid, we know that it has 2 COOH group. The structure goes like this, right? This is aspartic acid. So now we can look at the 4 amino acids. 4 अमाइनो एसिड्स को देखिए, अगर 4 अमाइनो एसिड्स को ध्यान से देखें तो इनमें से पहली बात तो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड है जिसमें OH ग्रुप है, दैट इज सेरीन. सो ऑब्वियसली नो डाउट योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सेरीन लाइसिन, राइट. बिकॉज ऑफ लाइसिन लाइक बोथ हैव NH2 ग्रुप, सो कार्बोलामाइन टेस्ट तो देंगे. और फिर उसके बाद सेरीन जो है वो क्या दे सकता है, in though dipeptide, serine lysine is a dipeptide, right, which is made up of 2 amino acids. So serine जो है उसमें से वो क्या दे सकता है, पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे सकता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, amylopectin is composed of, amylopectin is composed of, and they have given us different options. So सबसे पहली बात तो जो अमाइलोपेक्टिन है वो स्टार्च का एक कंपोनेंट है, राइट. नाउ यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फैक्ट दैट स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. सो ये जो अमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट है ये कैसा कंपोनेंट होता है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है, राइट. इट इज द ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, it is the branched chain polymer of alpha D glucose. अल्फा डी ग्लूकोज का ये क्या है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है. ना ब्रांच्ड का मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन भी होगी और उस स्ट्रेट चेन को ब्रांचेस भी होंगे. तो सबसे पहले अगर मेन चेन की बात करें तो मेन चेन में होते हैं C1C4 linkages, C1C4 glycosidic linkages, right? And to this main chain the branches are connected by C1C6 glycosidic linkages. मतलब जो मेन चेन है उसमें तुम्हें C1C4 glycosidic linkages देखने को मिलेंगे और उस मेन चेन के साथ जो ब्रांचेस है वहां किस टाइप के बॉन्ड्स है, C1C6, and it is made up of alpha D glucose only. So that's why now you can find out the correct option. अगर हम इस डेटा को और ऑप्शंस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1C4 एंड C1C6 linkages. Moving to the next question. Now, number of stereocenters present in linear and cyclic structure of glucose are respectively. ठीक है, स्टीरियो सेंटर्स का मतलब ही होता है कायरल सेंटर्स, राइट. तो हमें दोनों स्ट्रक्चर्स पहली बात तो निकालते आने चाहिए, दैट इज लीनियर भी और साइक्लिक भी. चलिए ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो वी नो दैट द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज एट द अपर पार्ट, दैट इज द CHO. देन सेकंड कार्बन हैज OH on the right, third carbon has OH on the left, fourth and fifth carbon have OH on the right, and the last carbon is CH2OH. Now in this linear structure you have to find how many chiral carbon are there. मतलब ऐसे कार्बन हमें देखने हैं कि जिसको क्या है, 4 different groups attached है. Obviously CHO is not a chiral carbon, CHO में जो कार्बन है वो chiral नहीं है. उसके बाद वाला जो सेकंड नंबर का कार्बन है अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसे एक H अटैच्ड है, एक तरफ से OH अटैच्ड है, ऊपर से CHO ग्रुप, and at the downside this as this whole group which is attached to it. So if you observe you can see 4 different groups, on the second carbon. So I can say that
carbon 2 is what? A stereo center. Similarly for carbon 3, it is also a stereo center, even carbon 4 and carbon 5. लास्ट कार्बन CH2OH जो है उसमें जो लास्ट कार्बन है वो कायरल नहीं है क्योंकि उसमें दो सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड है, दैट इज दो हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कितने स्टीरियो सेंटर आए? सो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 4. अब यही अगर हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप अल्फा डी ग्लूकोज निकालो या आप बीटा डी ग्लूकोज निकालो, meaning will be same. We know that in alpha D glucose and beta D glucose the difference is only in the orientation of the groups at the first carbon. तो इसीलिए अगर हम चलिए अगर अल्फा डी ग्लूकोज भी निकालते हैं तो we know what groups are attached. First carbon has HOH, second HOH, थर्ड कार्बन में OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन में OH नीचे, फिफ्थ कार्बन पे नीचे एक H और ऊपर CH2OH. Now in this compound, if we carefully observe, we can see even this first carbon is a stereo center क्योंकि उसको कौन से ग्रुप लगे? एक H है, एक OH है, एक तरफ से ऑक्सीजन है, एक तरफ से ये कार्बन है जिसपे HOH. So obviously all of these groups are different. Even second carbon, even third one, even the fourth one and even the fifth carbon. Sixth नहीं होगा, sixth पे already दो हाइड्रोजन है एक कार्बन. सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स आए हमारे या कितने कायरल कार्बन निकल के आए? 5. सो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर is equal to 5. So our answer will be option A, that is 4 and 5. Moving on to the next question. Glucose and galactose are having identical configuration in all the positions except position. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, पहली बात तो देखिए ये दोनों भी जो है वो क्या है? आइसोमर्स ही है, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दैट फॉर यू. सो सेकेंड कार्बन में OH राइट पे, थर्ड पे सिर्फ लेफ्ट में होता है और फोर्थ फिफ्थ पे अगेन OH राइट में ही होगा. सो दिस इज ग्लूकोज, राइट? स्पेसिफिकली डी ग्लूकोज, ठीक है. अब अगर गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज को आइडेंटिकल है, इट इज आइडेंटिकल टू ग्लूकोज एक्सेप्ट एट कार्बन नंबर 4. मतलब जो गैलेक्टोज है उसमें जो कार्बन नंबर 4 है उसमें OH जो है वो लेफ्ट में होता है ना कि राइट में, जैसे कि ग्लूकोज में है, राइट? सो यू कैन स्पॉट द डिफरेंस ओवर हियर. आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस स्पॉट कर सकते हो, दैट इज एट द कार्बन नंबर 4, राइट? सो these differ in the configuration at the carbon number 4, right? And such isomers that differ in the configuration at any one chiral carbon, okay, except the carbon number 1, these two are called as epimers of each other. ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के एपीमर्स कहते हैं. सो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, एक्चुअली these two are epimers which differ in the configuration at the C4 carbon. Next question says that which of the following statement is incorrect about glycogen? Glycogen के लिए इनमें से कौन सी statements जो है वो गलत है? ओके, सो व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? चलिए एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट्स में क्या क्या कहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू अमाइलोज. देन सेकंड, ओनली अल्फा लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन सम यीस्ट एंड फंग. ओके, सबसे पहली बात तो ग्लूकोज की अगर हम ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजन is not similar to amylose. The first option itself is wrong. See, because जो amylose है, amylose actually straight chain polymer है, किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का. लेकिन जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन it is a highly branched structure. Glycogen is a highly branched structure.
ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन की तरह ये होता है. देन ग्लाइकोजन इज द storage material of animals, storage material of animals. Animals store the glucose in the form of glycogen in liver, in muscles and even in brain. And then when body requires glucose, these glycogen is broken down into glucose by using enzymes. ठीक है, एंजाइम्स के हेल्प से जब भी हमें ग्लूकोज मतलब एनर्जी की नीड होगी तो बॉडी इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के यूनिट्स में ब्रेक करती है. Right? It is also found in yeast and fungi. In some yeasts and fungi, it is also found. So that's why here the incorrect statement is the first statement, and that's why answer will be option A. Moving on to the next question. The correct sequence of amino acids present in the tripeptide given below is. Now again, for solving such questions, knowledge of all the structure of amino acids is mandatory. राइट, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पेप्टाइड है. सो ऑब्वियसली 3 पेप्टाइड कनेक्ट करने के लिए 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बनती है. सो द वन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज ओवर हियर एज यू कैन सी CONH एंड द अनदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज ओवर हियर C डबल बॉन्ड O NH. राइट, तो अब हम जो है इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं और C डबल बॉन्ड O को आप बना दीजिए COH और NH को बना दीजिए NH2 एंड जस्ट सेपरेट देम. तो फिर आप इस तरीके से अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं. सो जो पहला स्ट्रक्चर है, राइट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस COOH. राइट, ओके. देन दिस इज व्हाट, अब यही हमारा यहाँ पहला अमाइनो एसिड है. दिस इज नथिंग बट वैलिन, दिस इज नथिंग बट वैलिन. राइट, टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, सो NH को NH2 बना दीजिए. यहाँ पे नीचे है CH2OH, यहाँ ऊपर है C डबल बॉन्ड O CH2. नाउ इफ यू मस्ट रिमेंबर वी हैव रिटन दिस स्ट्रक्चर इन द लास्ट क्वेश्चन. जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रिएजेंट वाला, तो उसपे सेरिन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था. राइट, सो दिस सेकंड अमीनो एसिड हियर इज सेरिन and the last one that is NH2 carbon, that is CH, ऊपर CH OH ME and here COOH. So this is actually 309, that is THR. So the correct sequence will be obviously option number C. So that's why for solving such kind of simple questions you must remember some things, that is the basic structure of all the amino acids. Okay, moving on to the next question. Among the following compounds, which one is found in RNA? Among the following compounds, which one is found in RNA? इसमें से कौन सा हमें RNA में देखने मिलता है? अब अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, सो अगेन these are actually the structure of the nitrogenous bases that are present in this compounds. So that's why again we must have the knowledge about their structures. So सबसे पहला ऑप्शन जो है, okay, सबसे पहला ऑप्शन जो है that is nothing but structure of uracil. This is nothing but the structure of uracil which is present in only RNA, right? Structure B जो है हमारा structure B thymine है, structure B thymine, right? But it is present only in DNA, not in RNA, right? Thymine जो है वो हमें RNA में मिलता है क्या? नहीं, वो सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है, राइट? ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो है साइटोसिन फाउंड इन बोथ, राइट? ये दोनों में तो कॉमन है, डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा. और जो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी, नाउ यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजली ऑब्जर्व ऑप्शन ए एंड डी.
ऑप्शन ए और डी को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है कि यूरासिल में एच है, तो इस ऑप्शन डी में हमने एच के जगह मिथाइल लगाया. So actually this is nothing but a derivative of uracil. So first of all, this is not a pyrimidine. So first of all, this is not a pyrimidine. This is not a nitrogenous base. Okay? It is just a derivative of uracil. So obviously हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा क्योंकि इनमें से सिर्फ ए एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें आरएनए में मिलता है. ओनली इन आरएनए, इवन नॉट इन डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI gives. ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI gives. नाउ HI जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. HI जो होता है दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड. इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. It is a strong reducing agent. It will reduce all the type of the OH groups which are present in alcohol. मतलब secondary OH groups और primary OH group along with the carbonyl group. ठीक है, तो मतलब OH group, carbonyl group इनको क्या कर देगा? HI जो है वो क्या कर देगा? Reduce कर देगा, right? So what will be the product that will be formed? That is from glucose. Since it can reduce the CO group, even the OH groups, फिर OH group primary हो या secondary हो, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? CH3 SCH2 taken 4 times and CH3. So हमें क्या मिला? N-hexane. What did we got? We got N-hexane. So answer will be option A. Then moving on to next question. Which of the following compounds will behave as a reducing sugar in aqueous KOH solution? So if you look at the options, so remember that sugars which have an aldehyde, ketone, a hemiacetal or a hemiketal group, these will be able to reduce an oxidizing agent. तो मतलब ऐसे शुगर रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह काम कर सकते हैं. तो अगर इन सारे ऑप्शंस को देखें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, राइट, पहले ऑप्शन में जो हमें शुगर दी गई है दैट इज CH2OH, नीचे है OC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे OH OH and CH2OH. So first of all, when this sugar will be treated with aqueous KOH, right? aqueous KOH से हम जब इस शुगर को ट्रीट करेंगे, so यहाँ पे ये जो हमारा acetyl group है, right? It will get converted into O minus. Basically, it will be removed because O minus KOH में जो O minus है वो क्या करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? CH3 COO minus and K plus. Okay? Then what will happen is that अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, राइट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, नाउ दिस कैन गेट tautomerized into a different structure. So actually this is a hemiacetal. तो अब ये हेमीएसिटल कंपाउंड जो है ये रिंग ओपन हो सकती है. देखिए कैसे, ये O माइनस का चार्ज यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया, फिर ये जो 5 मेंबर की रिंग थी ये ब्रेक ओपन हो जाएगी. ब्रेक ओपन हो जाएगी तो देखिए क्या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नहीं बनेगा. ये ओपन गया ऊपर का O माइनस, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या था? CH2OH, O माइनस बन गया C डबल बॉन्ड O and the rest structure is as it is. The remaining structure will be as it is. Okay. तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, राइट? दिस इज नथिंग बट दी, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. So that's why since this sugar has a keto group, it means that it can function as a reducing sugar, and that's why our option will be, our answer will be option A, right? Such kind of conversion will be not possible in other options. Then moving on to the next question, which of the following vitamins given below is water soluble? अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं that vitamin B and C are water soluble.
are water soluble, and the vitamins A, D, E and K, these are water soluble or water insoluble or fat soluble. वाटर इनसोल्यूबल है या फिर आप उन्हें फैट सोल्यूबल भी कह सकते हैं. तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए. काफी इजी क्वेश्चन था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स, राइट. सो फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है तो बेसिकली कितने अमाउंट ऑफ एटीपी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो द रिएक्शन गोज लाइक दिस, दैट इज 6CO2 plus 12 NADPH plus 18 ATP plus 18 ATP forms C6H12O6 plus 12 NADP plus 18 ADP, that is adenine diphosphate, right. So this is the reaction. अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में ये दिख रहा है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 18 ATP यूनिट्स लग रहे हैं. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो हियर दिस NADPH actually stands for nicotinamide, here I, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and ATP stands for adenine triphosphate. Okay. Moving on to the next question. The presence of hydroxy group on which carbon atom of sugar differentiates RNA and DNA, right? तो जो शुगर है उसमें से कौन सा कार्बन डिफर करता है आरएनए और डीएनए में. अब अगर बात करें तो आरएनए में जो हमारी शुगर होती है, वो कौन सी शुगर होती है? बीटा डी राइबोस, राइट. वेयर एज इन डीएनए में कौन सी शुगर है? बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस. ओके, सो the difference is just that in ribose sugar OH group is present at the second carbon, but in the DNA, this deoxyribose sugar, in this sugar OH group is absent at the second carbon. इसलिए तो नाम में भी क्या है? deoxyribose. Okay, so even for this I will draw the structure of the sugar. Okay, so HOH, थर्ड कार्बन पे भी OH डाउन है. यहाँ पे ग्रुप होगा हमारा CH2OH and H. So this is beta D ribose. And what is the structure of beta D2 deoxyribose? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, नीचे OH और यहाँ पे CH2OH और H. ओके, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन नंबर सेकंड है यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं. सो वेयर डू दिस sugars differ? These sugars differ at the carbon number second. So that is option B. Next question. The change in the optical rotation of freshly prepared solution of glucose is known as. Okay, very nice question. अब इसमें जो चार ऑप्शंस है इन टर्म्स के बेसिक मीनिंग हमें पता होने चाहिए. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है? द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, राइट, of freshly prepared solution of glucose is known as. So the first option says that, first option क्या है? Tautomerism, right? So first of all, what do you mean by tautomerism? See, tautomerism are the structural isomers. Okay, किसी एक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिनको हम रेडिली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कीटो इनॉल हो गया, दैट इज अ फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म. बट उसका यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन से कोई मतलब नहीं है. सो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं है.
Then after that, racemization. Okay, racemization. Now, what do you mean by racemization? Racemization का मीनिंग क्या होता है? रेसिमाइजेशन में हम एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को उसके रेसिमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? मतलब कोई एक कंपाउंड है तो उसके जो दो इनैंशोमर्स है वो 1:1 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 50-50 का हो या 1:1 मोलर रेशियो का हो। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, एक इनैंशोमर का ऑप्टिकल रोटेशन उसी के दूसरे इनैंशोमर के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट कर देता है एंड यू गेट अ रेसिमिक मिक्सचर and this process only is called as racemization, right? So obviously ये भी हमारा आंसर नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज करते हैं। रेसिमाइजेशन में ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज नहीं होता है, राइट? देन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन। Now, specific rotation actually it is a property of that chiral compound. Basically, we are going to measure the rotation, the optical rotation that takes place in a certain substance, right? Okay, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? स्पेसिफिक रोटेशन एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? ओके, सो द लास्ट ऑप्शन इज अवर म्यूटा रोटेशन। अब एक ही ऑप्शन बचता है, that is muta rotation. Now what you mean by muta rotation? Muta rotation means a spontaneous change in the specific rotation of an optically active compound. Spontaneous change in a specific rotation of an optically active compound, So answer is option D, that is the muta rotation. So our next question is which of the following statements is correct? और सारे स्टेटमेंट्स में अमाइनो एसिड्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की गई है, राइट? अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं दैट ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, राइट? बिकॉज जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या है, एक COOH, एक NH2 और जो कार्बन है उसे दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। मतलब ग्लाइसिन में जो R पार्ट होता है दैट इज द H. So that's why this carbon, the central carbon is not optically active. So that's why obviously your answer will be option C. Moving on to the next question. Next question says that Burette test is not given by. So Burette test जो है, Burette test एक ऐसी टेस्ट होती है कि जिन कंपाउंड्स में अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो, CONH इस तरीके से, राइट? इवन द N कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होगा, राइट, वो कंपाउंड्स पॉजिटिव ब्यूरेट टेस्ट देते हैं। सो ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड्स में तो पेप्टाइड लिंकेज होती है, राइट? वी नो हाउ अ पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म। एक अमाइनो एसिड का COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 कंडेंस होते हैं, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता है। Obviously proteins are made up of polypeptides, so ये दोनों तो burette test देंगे। Even urea will give the burette test because what is the structure of urea? NH2 C double bond O NH2. So even this will give the burette test. So यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन A, that is carbohydrates do not give the burette test. Next question. The secondary structure of protein refers to alpha helical backbone, hydrophobic interactions, sequence of alpha amino acids and fixed configuration of the polypeptide backbone. Now see, primary structure जो होता है, we know that there are different stages in the structure of protein, that is primary, secondary, tertiary, right, and even quaternary. तो जो primary स्ट्रक्चर है उसमें तो सिर्फ हम क्या देखते हैं, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस इन्वॉल्व है, राइट, ये कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इन्वॉल्व्स alpha helical structures and the beta pleated sheet like structures, right? So obviously no doubt यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन
A. So our next question is, uracil is base which is present in RNA with the following structure. The percentage of nitrogen in uracil is, right? तो हमें यूरासिल का स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है, तो हमें इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, ये हमें बताना है. सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी फाउंड आउट वेरी इजी. सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इस यूरेसिल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरेसिल. अब अगर यूरेसिल को हम ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, सो दैट इज C4, राइट. कितने नाइट्रोजन है, 2, दैट इज N2. कितने ऑक्सीजन है, 2, दैट इज O2. एंड टॉकिंग अबाउट H, तो देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ नीचे एक है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक होगा और यहाँ एक होगा, तो टोटल कितने हुए, H4. तो अब इनका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. कार्बन का 12 है, सो 12 × 4 प्लस एक नाइट्रोजन का 14, 14 × 2, 1 ऑक्सीजन 16, सो 16 × 2, and 1 hydrogen 1 × 4, so 48 plus 28 plus 32 plus 4. so इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 112, राइट. हमारा आंसर कितना आएगा, 112. ओके, सो अब 112 हमारा यूरासिल का मॉलिक्यूलर मास आ गया. सो परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, वी नो हाउ टू फाइंड द मास परसेंट, that is the mass or the weight of that component divided by the total mass of the compound, right, into 100. so कितने नाइट्रोजन है, 2, so नाइट्रोजन का मास कितना है, 28, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 112 into 100. इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 25% आएगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा, 25, राइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Total number of tripeptides possible by mixing valine and proline is. Now these are the NAT types question कि जहाँ पे हमें appropriate number insert करना पड़ता है, यहाँ पे कोई options नहीं होते. Even the previous question was same. तो यहाँ पे देखिए तुम्हें क्या करना है, वैलिन और प्रोलिन, ये दो अमीनो एसिड्स यूज करके कितने ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल है, कितने बन सकते हैं, वो निकालना है. अब वैसे तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड्स. नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड्स इज इक्वल टू कितने अमीनो एसिड्स है, 2, उनसे तुम्हें क्या बनाना है, ट्राइपेप्टाइड, सो दैट इज 3. सो 2 raised to 3 आंसर होगा 8. बट हम इसे सॉल्व, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना डिफिकल्ट लगता है तो इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान है. सी, दिस इज जस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल, राइट. तो वैलिन प्रोलिन अगर 2 ही है तो देखो सबसे पहला तो अमीनो एसिड ये हो सकता है कि जिसमें सारे वैलिन हो, वैलिन वैलिन वैलिन. दूसरा हो सकता है प्रोलिन प्रोलिन प्रोलिन, राइट. अब एक अमीनो एसिड ऐसा हो सकता है कि जिसमें 2 वैलिन हो और एक प्रोलिन हो. लेकिन ऐसे कंडीशन में भी 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कि जैसे वैलिन वैलिन प्रोलिन, देन वैलिन प्रोलिन वैलिन एंड प्रोलिन वैलिन वैलिन. समझ में आ रही बात. तो ये 3 कॉम्बिनेशन है. एक और सेट हो सकता है कि जिसमें ना 2 प्रोलिन हो और एक वैलिन हो, तो उसके भी 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट. 2 प्रोलिन, सो प्रोलिन प्रोलिन वैलिन, प्रोलिन वैलिन प्रोलिन एंड वैलिन प्रोलिन प्रोलिन. सो आप देख सकते हैं, आप देखिए इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. तो गिनिए इनको, कितने हैं ये, 8 है, राइट. सो द आंसर इज 8. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A short peptide on complete hydrolysis produces 3 moles of glycine. उन्होंने क्या कहा है कि एक पेप्टाइड था, लाइक पॉलीपेप्टाइड. शॉर्ट पेप्टाइड मतलब पॉली ही है वो, बट इट इज शॉर्ट. तो उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या मिला, वी गॉट 3 moles of glycine, राइट, प्लस 2 moles of leucine, that is LEU, and 2 moles of valine पर मोल ऑफ पेप्टाइड. अब ये 1 मोल के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, ये किससे मिले हमें, 1 मोल पेप्टाइड से. तो अगर क्वांटिटी वाइज बात की जाए तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एक पेप्टाइड का यूनिट
मुझे क्या दे सकता है, 1 पेप्टाइड यूनिट विल गिव मी 3 ग्लाइसिन प्लस 2 ल्यूसिन प्लस 2 वैलिन। सो टोटल कितने हैं ये, टोटल 7 अमाइनो एसिड्स है। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स है, 7। अब हम जानते हैं कि तुम्हें जितने भी अमाइनो एसिड्स दिए जाएंगे तो उनमें कितने पेप्टाइड लिंकेज है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n-1। मतलब अमाइनो एसिड्स का जो भी नंबर है उसे अगर n कहते हैं तो उनमें जो पेप्टाइड लिंकेज होगी वो हमेशा n-1 होगी, क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज। वैसे ही 3 को ज्वाइन करेंगे तो उनमें 2 पेप्टाइड लिंकेज, तो इस हिसाब से 7 अमाइनो एसिड्स के बीच में कितनी पेप्टाइड लिंकेजेस रही होगी, ऑब्वियसली 6 पेप्टाइड लिंकेजेस, 6 peptide linkages. Okay, so here answer should be 6. Moving on to the next question. Which of the following is a water soluble vitamin that is not excreted easily? अब ये theoretical question है, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सक्रीटेड इजीली, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Moving on to the next question. Given below are two statements and you have to just identify which one is true, which one is false, and that is the, and likewise you have to choose the correct option. तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है that maltose has 2 alpha D glucose units linked at C1 and C4 and it is a reducing sugar. This is correct. This is correct. पहले ही क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो माल्टोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स को ज्वाइन करके बनता है और उनमें जो लिंकेज होती है वो C1 C4 टाइप की लिंकेज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कहती है दैट माल्टोज हैज 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड एट C1 C6 एंड इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे देखा जाए तो इन स्टेटमेंट 2 में कई सारी गलतियां हैं। पहली गलती तो ये कि बीटा नहीं होता, दोनों भी अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं। माल्टोज में जो 2 डी ग्लूकोज यूनिट्स है बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। देन इवन द लिंकेज इज नॉट C1 C6, it is C1 C4 and even it is not a non reducing sugar, it is a reducing sugar. So this is completely false. So statement 1 is true and statement 2 is false. So हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब ये एंजाइम्स पार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट 1 में एंजाइम्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में कन्वर्जन्स पूछे गए हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, ओके, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेगा उसके मोनोसैकेराइड्स में, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, right? Okay, so that is invertase converting sucrose to glucose and fructose. So that is sucrose means only cane sugar. So A का 4 होगा, right? Okay, so मतलब हमारा आंसर या तो ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में से होगा। देखिए पहले ही ऑप्शन में 1 2 की प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, क्योंकि A का 3 हो ही नहीं सकता, राइट। अब बचते हैं बाकी के ऑप्शंस। बाकी के ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो जो माल्टेज होता है, माल्टेज एंजाइम, okay, maltase enzyme actually catalyzes the conversion of maltose to glucose, maltose to glucose, maltose to glucose, ठीक है। सो माल्टेज माल्टोज टू ग्लूकोज, डी का 2, ठीक है। अब देखिए सिर्फ इतने दो भी अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते तो हमें वैसे भी हमारा आंसर मिल चुका है, वो होगा ऑप्शन 3। देखिए डी का 2 होगा और ए का 4, बट फिर भी बता देती हूँ, जाइमेज जो एंजाइम होता है, zymase, okay, zymase actually catalyzes the fermentation of sugar into ethanol and CO2, ठीक है। and then last is the diastase. The diastase enzyme catalyzes the conversion of starch to maltose. तो फिर उस हिसाब से देख सकते हैं, जाइमेज दैट इज ग्लूकोज, शुगर मतलब ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, सो दैट इज बी का होगा 3, ओके, ये यहाँ पे 3 है, राइट, एंड सी का होगा 1। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3।